Hello everyone. Today we are going to read the poem John Brown by Bob Dylan. Okay? कुछ लोग Bob Dylan भी बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Bob Dylan is an American singer as well as a songwriter and a very popular figure. Okay. This poem is an anti-war poem. Okay? It is written about the destructive effect of a war. Let's start. John Brown, he is an American soldier. An imaginary name, but okay, fine. Representing all the lot. John Brown went off to war to fight on a foreign shore. His mama sure was proud of him. He stood straight and tall in his uniform. John Brown, he is going to a different land to fight for his country. And his mother, she is very proud because her son is going to the war front to fight for their country. And it's really a moment of pride to everyone, right? He stood straight and tall in his uniform and all. His mama's face broke out all in a grin. And John Brown is standing tall, handsome, smart, standing in front of his mother. And the mother is extremely happy to see her son in such an attire. क्योंकि जो जॉन ब्राउन जो खड़ा है अपने मम्मी के सामने और उसका जो यूनिफॉर्म है कैमोफ्लॉज ओके एंड आई थिंक यू आल्सो विल एग्री दैट द यूनिफॉर्म ऑफ अ सोल्जर इज द बेस्ट यूनिफॉर्म ऑन अर्थ. एक जवान के और एक सोल्जर के जो यूनिफॉर्म होते हैं ना, वैसा यूनिफॉर्म, वो जो वाइब है यूनिफॉर्म में, वो किसी भी और यूनिफॉर्म में नहीं है. सोल्जर्स लोग जैसे आर्मी में जो है, ओके, ऑल दीज पीपल. तो मम्मी क्या बोल रही है? ओ सन, यू लुक सो फाइन. आई एम ग्लैड यू आर अ सन ऑफ माइन. यू मेक मी प्राउड टू नो यू होल्ड अ गन. और मम्मी बोल रही है कि बेटा तू मेरा बेटा है और मुझे ये महसूस करके बहुत गर्व हो रहा है कि यू आर माई सन एंड यू होल्ड अ गन. तेरे पास बंदूक भी है. Listen, banduk, it's fine. To have a gun, it's okay. When a soldier carries a gun, it's okay. But the mother, this innocent lady, is completely unaware of the fact regarding the time when a gun is used. है ना? बंदूक है तो है, लेकिन जब बंदूक चलाना पड़ता है तो this is quite dangerous. Do what the captain says. Lots of medals you will get. और कैप्टन जो बोलेगा ना वो सुनना, क्योंकि सुनने से क्या होगा? You will get a lot of medals. You will make the officer who are in the higher rank, you will make them happy. And we will put them on the wall when you come home. और जब तू वापस आएगा, घर आएगा, वो मेडल लेके हम क्या करेंगे? वो घर में रखेंगे, घर को डेकोरेट करेंगे उस मेडल से. It's not at all easy to achieve, a medal. As that old train pulled out, John's ma began to shout, telling everyone in the neighborhood, that's my son, that's about to go. He is a soldier now, और जब वो ट्रेन छूटने वाली थी प्लेटफॉर्म से, स्टेशन से, मम्मी ने क्या की? She just started shouting and पड़ोस में जो लोग हैं उन लोगों को ये मम्मी आके बोली कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो बेटा है ना वो फौज में है, वो अभी लड़ाई करने जा रहा है. She made well sure her neighbors understood. और मम्मी ऐसे बोली कि सबको ये पता चले कि उसका जो लड़का है वो बैटल फ्रंट में, वॉर फ्रंट में जा रहा है. She got a letter once in a while and her face broke into a smile. तो ठीक है, 2 महीना 3 महीना बाद एक चिट्ठी आता था. As she showed them to the people from next door and she bragged about her son with his uniform and gun. और जब वो चिट्ठी उनको मम्मी को मिलता था, मम्मी क्या करती थी? वो चिट्ठी लेके वो घर घर जाती थी और सबको ये बोलती थी कि देखो मेरा बेटा ने मुझे चिट्ठी लिखा है. And it's really a moment of happiness. It's really a moment of solace on part of a mother to get a letter from her son
who is in the battlefront. Because in the battlefront, while you are fighting with your enemy, everything is uncertain. You always carry a question mark in your bag. And these things you called a good old-fashioned war. Oh, good old-fashioned war. ये जो लाइन है ना, good old-fashioned war, it's an irony. क्योंकि मम्मी को पता नहीं था कि एक्चुअली वॉर कैसा होता है. It's not a child's game. आप वॉर में जाओगे और दुश्मन जो है वो आपको चॉकलेट देगा. No, it's not like that. You are going to fight. Either you will kill or you will be killed. Right? अगर आप मारो या तो मरो. Then the letters ceased to come. For a long time they did not come. फिर वो चिट्ठी आना बंद हो गया. They ceased to come for about 10 months or more. 10 महीना हो गया. 10 महीनों से ज्यादा कोई चिट्ठी नहीं आई. Then a letter finally came saying, "Go down and meet the train. Your son is coming home from the war." फिर एक चिट्ठी आई. And in that letter it was written कि आपका जो बेटा है वो वापस आ रहा है. आप जाके उसको मिल लीजिए स्टेशन में. She smiled and went right down. She looked everywhere around. मम्मी गई. She was very excited. वो दौड़ के गई स्टेशन में. इधर उधर देखने लगी. But she could not see her soldier son inside. लेकिन लड़का जो है, जो सोल्जर जॉन जो है, जॉन ब्राउन जो है, वो दिखाई नहीं दे रहा था. But as all the people passed, she saw her son at last. जब वो स्टेशन थोड़ा खाली हो गया, तब मम्मी जॉन ब्राउन को she saw her son. When she did, she could hardly believe her eyes. लेकिन when she saw her son, she could not believe her own eyes. वो अपने जो आंख है उसको विश्वास नहीं कर सकती थी, कर रही थी. क्यों? Oh, his face was all shot up and his hand was all blown off. उसका हाथ उड़ गया था. मुंह जो था वो मुंह देखने लायक नहीं था. It was all shot up. इधर उधर घाव, injury. And he wore a metal brace around his waist. और उसका वेस्ट अराउंड हिज वेस्ट, कमर जो है उसमें एक मेटल ब्रेस, बेल्ट जैसा होता है. जो लोग ठीक से खड़े नहीं हो पाते, जो लोग ठीक से चल नहीं पाते, उन लोगों के लिए ये मेटल ब्रेस हम यूज करते हैं. उन लोग यूज करते हैं ये मेटल ब्रेस खड़े होने के लिए, क्योंकि मेटल ब्रेस जो है थोड़ा सपोर्ट देता है. और मम्मी ने क्या देखी? मम्मी देखी कि उसका जो लड़का है वो एक मेटल ब्रेस में है. एंड ही वाज ऑन व्हील चेयर. ही वाज नॉट स्टैंडिंग. प्रोबेबली ही वाज ऑन व्हील चेयर. He whispered kind of slow in a voice she didn't know, when she couldn't even recognize his face. फिर वो लड़का मम्मी को कुछ बोला. He was whispering because he did not have that enough strength to talk in a clear way. उसके पास बात करने के लिए उसको उतना स्ट्रेंथ भी नहीं था. वो धीरे धीरे से कुछ मम्मी को बोल रहा था जो क्लियर नहीं था. Oh Lord, not even recognize his face. और ये कितना पेनफुल है एक मम्मी के लिए, एक माँ के लिए, कि she was visiting her son after a long time, who is coming back from the battlefront, and the son, one of his hands was blown off, his face was shattered, okay, and it was really painful. Oh, tell me, my darling son, pray tell me what they done. How is it you come to this way? फिर मम्मी ने उसको पूछा कि क्या हुआ बेटा, तेरा जो हाल है ये ऐसा क्यों है? उन लोगों ने, इसमें दुश्मन ने ऐसा क्या किया कि तेरा हालत ऐसा हो गया? He tried his best to talk, but his mouth could hardly move. जॉन कुछ बोलने का ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था, but he could not even move his mouth. And how could he? कैसे कर पाएगा वो? इंजुरी है. His face was even, as I told you, it was shattered, wounded. And the mother had to turn her face away. और मम्मी ने क्या की? वो अपने जो मुंह है वो थोड़ा घुमा लिए. क्यों? Can you imagine that when a mother turns her face away from the face of her son or daughter,
डोंट यू रिमेंबर माँ व्हेन आई वेंट ऑफ टू वॉर? माँ आपको याद है जब मैं वॉर में गया था, जिस दिन मैं घर से निकला था? यू थॉट इट वॉज द बेस्ट थिंग आई कुड डू. मम्मी आपको ऐसा लगा कि ये जो वॉर है, ये जो फाइट है, वो ऐसा कुछ था जो मैं कर सकता था. एंड दैट वॉज द बेस्ट थिंग आई कुड डू. I was on the battleground. You were home acting proud. मैं battleground में था. I was fighting. मैं लड़ रहा था. और आप क्या कर रही थी? You was not there standing in my shoes. Standing in my shoes का मतलब क्या है? आप जो सिचुएशन उधर था, बैटल फ्रंट में था, वॉर फ्रंट में था, आप उस सिचुएशन में आप नहीं थे. आपको कैसे पता होगा कि क्या होता है उधर? कितना पेनफुल है, कितना अनसर्टेन है सब कुछ. ओह, एंड आई थॉट व्हेन आई वाज देयर, गॉड व्हाट आई एम डूइंग हियर. और आपको पता है मां, जब मैं वहां पे था ना, तब मैं अपने आप को ये पूछता था कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्या करने आया हूं मैं यहां पे? फाइट, लड़ने आया हूं? आई एम ट्राइंग टू किल समबॉडी और डाई ट्राइंग. मम्मी मैं किसी को मारूंगा, नहीं तो वो मुझे मार देगा. मैं किसी को मारने का कोशिश कर रहा हूं और एक साथ मरने का भी. क्योंकि अगर मैं नहीं मारूंगा, दैट पर्सन, दैट सोल्जर, दैट एनिमी विल किल मी. नो वन इज गोइंग टू गिव यू अ बंच ऑफ फ्लावर्स एंड अ चॉकलेट, राइट? इफ यू गेट एनीथिंग, यू विल गेट बुलेट्स. बट द थिंग दैट स्केयर्ड मी मोस्ट वाज व्हेन माय एनिमी केम क्लोज. लेकिन आपको पता है मां, कब मैं घबरा गया था, मैं डर गया था? When my enemy came close, जब मेरा दुश्मन जो है वो मेरे सामने आया था. And I saw that his face looked just like mine. और मुझे लगा मेरे दुश्मन का जो फेस है, जो मुंह है, वो मेरे जैसा ही है, मेरे जैसा यंग, ओके, फाइन, गुड लुकिंग, स्मार्ट, मेरी उम्र का ही है. वो लॉर्ड जस्ट लाइक माइन. वो भी किसी का वो बेटा है. मैं भी आपका बेटा हूं. अगर वो मुझे नहीं मारेगा तो मैं उसे मार दूंगा. ये रूल है वॉर का. एंड आई कुडंट हेल्प बट थिंक थ्रू द थंडर रोलिंग एंड स्टिंक. जब वो कैनन बॉल्स जो गिर रहा था, जो राइफल्स चल रहा था, इतने सारे लोग मर चुके थे, बदबू जो है, उसमें हम सोच रहे थे, उसके अंदर में रह के हम सोच रहे थे that I was just a puppet in a play, and through the roar and smoke, this string is finally broke. कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक puppet, एक पुतला हूं, and someone makes me fight, someone makes me behave that way. Okay. This string is finally broke and the cannonball blew my eyes away. फिर जब मैं ये सोच रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, तब एक कैनन बॉल जो है वो आके गिरा. और क्या हुआ? ब्लू माई आईज अवे. मेरा जो आंख है वो खत्म हो गया, उड़ गया. As he turned away to walk, his ma was still in shock. Then John Brown, he just turned away. He was about to walk. Maybe he was on his wheelchair. It's not clear, but whatever. He was not in a state to walk like us. And seeing the metal brace that helped, and his mother was in a shock. And seeing the metal brace that helped him stand. But as he turned to go, he called his mother close. और मम्मी देख रही थी वो मेटल ब्रेस की तरफ, जो मेटल ब्रेस को लेके थोड़ा सपोर्ट लेके जॉन ब्राउन वो शायद खड़ा था, चल रहा था. तो जब वो जाने वाला था, वो जा रहा था, वो घूमा. ओके, ही टर्न्ड टुवर्ड्स हिज मदर. ही कॉल्ड हिज मदर क्लोज एंड ही ड्रॉप्ड हिज मेडल्स डाउन इनटू हर हैंड. फिर मम्मी को वो पास में बुलाया और जो मेडल्स उसके पास था, दो तीन मेडल्स उसको मिला था, वो मम्मी के हाथ में दे दिया. कि मम्मी आपको क्या चाहिए था? मेडल चाहिए था ना. आप क्या बोली थी कि जब मैं मेडल लेके आऊंगा आप क्या करोगी? आप घर में वो मेडल रख के घर को डेकोरेट करोगी. ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं है, मेडल आप रख लो, मैं जा रहा हूं. सो दिस इज द पोएम जॉन ब्राउन. आई थिंक
I have made myself clear to you. समझ में आया? ठीक है, तो ये ठीक से पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ने के बाद ये जो पोएम है वो और भी क्लियर हो जाएगा. वर्ड मीनिंग्स ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है. और नेक्स्ट क्लास में या 2-3-4-5 क्लास के बाद हम इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसको लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे. ओके, टुडे up till this, and if you like the explanation, the way I tried myself to explain this poem to you, subscribe the channel, share and comment. Bye.